سلام دعا کے بعد ہم بچوں سے مخاطب ہوئے. جی سب سے پہلے بچوں سے پوچھنا ہے حروف قلقلہ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ حروف قلقلہ کچھ بچے کہیں گے ہاں, کچھ کہیں گے نہیں. ٹھیک ہے بچے تو کہیں گے جی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حروف قلقلہ کے متعلق آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ جی پیارے بچوں جی ٹھیک ہے بتائیں حروف قلقلہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ بتائیں جی بتائیں, آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا تو بتائیں. کیا لفظ جو ہے نا کھینچ کے پڑھنا حروف قلقلہ تھوڑا سا بچوں کو, بچے سے غلطی ہو جائے آپ اس نے روکنا ہے لیکن ڈانٹنا نہیں ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ڈانٹیں گے تو بچہ دوبارہ نہیں بولے گا, وہ غلط بتا دے گا خیر ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. کوئی بھی سبجیکٹ ہے بچے کو نہیں ڈانٹنا, پیار سے پیش آنا ہے. جی آپ سوچ کر تو پھر بتا دیں. اور کوئی حروف قلقلہ پانچ ہے حروف قلقلہ, قاف طا با جیم دال. جی جن کو قلقلہ دے کے پڑھتے ہیں تو دوبارہ آپ کے پاس اپنی آواز واپس آنی چاہیے. اور کچھ چیزیں بیسک میں سے مس ہو رہی ہیں. جب اس لفظ پر کوئی حرکت ہوگی تو قلقلہ نہیں ہوگا. ہمیں تو منع کیا بھائی نا آپ نے, ہمیں تو نہیں اچھا ہے, اچھا ان کو پتا, اب اگر ہم بتائیں گے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا. اچھا کیا, بولنے کا موقع ان کو ملنا چاہیے. آپ ماشاء اللہ سارے پورا حضرات ہیں. جی ویسے بتا سکتے ہیں آپ میں. جی اور ساکن ہونا چاہیے. اور جیسے ہم بال کو دیوار پر مارتے ہیں ہماری طرف. ٹھیک ہے, سب سے آپ نے سوال لے لیے. ٹھیک ہے, کچھ بچوں نے بتایا, کچھ غلط بچوں نے بتائیں گے بتایا, کوئی بات نہیں. اب آپ نئے سرے سے شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ جو بھی بک پڑھ رہے ہیں نا اوپر نام دے دیں گے. ٹھیک ہے, حروف قلقلہ. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ حروف قلقلہ. سوری میں لیٹ ہو گیا, یہ پہلے لکھنا تھا. ٹھیک ہے, تو حروف قلقلہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ حروف قلقلہ. پھر آپ حروف قلقلہ کے متعلق ڈسکشن کریں گے. جی آپ میں سے کوئی کسی کو معلوم ہے تو بتائیں. تو بچوں سے بتانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے, وہاں سے نہیں. حروف. ٹھیک ہے, حروف کیا ہے؟ حرف کی جمع. کس کی؟ حرف کی جمع. واحد ہے, حروف جمع. آپ دیگر مثالیں دیں جیسے شکل کی جمع اشکال ہے, جیسے مخرج کی جمع مخارج ہے, اور اسی طرح کتاب کی جمع کتب ہے. تو اسی طرح حرف کی جمع کیا ہے؟ حروف ہے. ٹھیک ہے, حرف کی جمع حروف ہے. اور قلقلہ سے کیا مراد ہے؟ قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ قلقلہ سے مراد جنبش پیدا کرنا. کیا مراد ہے؟ جنبش پیدا کرنا. جنبش کا مطلب کیا ہے؟ آواز ٹکرا کر واپس آئے. آواز ٹکرا کر واپس آئے. جیسے آپ ربڑ کی گیند کو دیوار پر مارتے ہیں تو واپس پلٹ کر آتی ہے نا, اسی طرح حروف قلقلہ میں آواز واپس پلٹ کر آئے. اب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ جیم دال. جی حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ دوبارہ ریپیٹ کریں. آپ یہ نہیں, آپ کوشش کریں جب آپ وائٹ بورڈ یوز کر رہے ہو نا, آپ بچوں سے مخاطب رہیں مسلسل. یعنی آپ وائٹ بورڈ پر لکھ رہے ہو, پیچھے خاموشی, بچے شرارتیں کرتے ہیں, کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں جو بلیک مینٹر, تو آپ انگیج رکھنے کے لیے ساتھ میں ان سے. جی حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف. دوسرا کیا ہے؟ نمبر 2 پہ قاف. نمبر 3 پہ با. نمبر 4 جیم. نمبر 5 دال. کتنے ہو گئے حروف قلقلہ؟ 5. کون کون سے؟ قاف با جیم دال. ٹھیک ہے, اب یہ 5 حروف قلقلہ ہے. سوال یہ ہے کہ ان پر حروف قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جی ان پر حروف قلقلہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب جذب ہو. ایک اور بھی ہے, جب جزم ہو یا ان کے اوپر وقف کیا جائے. کیا کیا جائے؟ وقف کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کاف ہے, اس کے اوپر جزم ہے. جزم کی علامت اس طریقے سے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ حرف ہے, حرف کے اوپر جزم آ گئی. یہ کاف کے اوپر جزم, دال, ان کے اوپر جزم ہوگی تو تب قلقلہ ہوگا. جزم نہیں ہوگی یا ساکن نہیں ہوں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے یہ حرف ہے, ہم اس کی یہ کیا ہے, ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قلقلہ کیسے ہوگا؟ ٹکرا کر واپس آیا. ٹھیک ہے, اق. جی پڑھیے سارے. دوبارہ ریپیٹ کیجیے.
अब हम अहद, ठीक है, ये क्या लफ्ज है? अहद। बेसिकली है अहदुन है, ठीक है, जी, जी। कुल हुवल्लाहु अहदुन। अब यहाँ पर आयत का आखिर हो रहा है, हम यहाँ पर वक्फ करेंगे। यहाँ पर जज़म नहीं है, यहाँ पर जज़म है, लेकिन यहाँ पर जज़म नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साकिन कर देंगे, तो इस बात को साकिन कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, अहद। क्या करेंगे, अहद। कलकला करेंगे। कलकला क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि साकिन हो। दाल हुरूफ कलकला में से है, और उसकी शर्त ये है कि उसके ऊपर जज़म हो या उस हर्फ के ऊपर वक़फ़ किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कलकला करेंगे, जी सारे करें, अहद। अहद, अहद। ठीक है। इसी तरह इसके अलावा आप दीगर मिसालें लिखें। जी आप में से कौन बताएगा ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ? जी कौन बताएगा? चलें आप बताएं, ये क्या लिखा है? वाइन है, नब वही। यहाँ पर क्या हो रहा है? कलकला हाँ हो रहा है, कलकला बाप हो रहा है, ठीक है। तो कलकला करें यहाँ पर, कलकला वाज़ेह होना चाहिए आपका, ताकि बच्चे भी जब उसको रिपीट करें आपकी बात को सुने। बच्चे हमारी प्रैक्टिस से सीखेंगे, ठीक है। आप उनके सामने कलकला को वाज़ेह करें, अहद, अहद ना कलकला करेंगे, अहद। इसी तरह नबवी, नबवी अगर आप सिंपली पढ़ेंगे नबवी तो फिर बच्चे भी कलकला नहीं करेंगे। ज़रूरी है कि आप बच्चों के सामने जब प्रैक्टिस करें उन्हें करवाएं, जो साथ में खुद भी, तो इसलिए आपने ये प्रैक्टिस खुद भी करनी है ज़रूरी। ये फ़ायदा है, देखें अगर आप इंग्लिश मैथ उर्दू की ना भी प्रैक्टिस करें, चलें उसका नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे बेशुमार हैं, बेशुमार। आपको अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा, जब अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाएगा तो आपको भी एक सुरूर आएगा, फिर आप घर में खुद अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। और अदायगी जब आप खुद पढ़ रहे होंगे तो अच्छा कुरान पाक पढ़ने पर ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाना है, एक एक हर्फ की। अगर आपको मिसालें नहीं ना आती, आप बुक से देख लें, कोई और मिसालें बुक से देख लें, या आप उसको नोट कर लें, अपने पास नोट करके ले आएँ दीगर मिसालें, ताकि आप कुछ जो बुक पर लिखी हैं उसके अलावा कुछ बच्चों को करवाएं। जी तो सारा सबक पढ़ाने के बाद, डिस्कशन करवाने के बाद आप इयादा करवाएंगे सारी चीज़ों का। हो गया, यहाँ तक हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी, इयादा करवाना है, ठीक है। जी बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? जी हरूफ कलकला से क्या मुराद है? जो ऐसे हरूफ जिनको जुम्बश से पढ़ा जाता है, यानी आवाज टकरा कर वापस आती है, ठीक है। ऐसे हरूफ जिनको जुम्बश के साथ अदा किया जाता है, यानी आवाज टकरा कर वापस आती है। जी हरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? ठीक है। इनके ऊपर कलकला कब होता है? जब ये साकिन हो या इन पर वक्फ किया जाए तो तब कलकला होगा, ठीक है। आज का हमारा सबक हरूफ कलकला था। तो फिर जब अब अगर 5 क्लास में नाजरा आप पढ़ रहे हैं, आप रोज़ाना 5 मिनट इस तरह की आप प्रैक्टिस करवा कर नाजरा फिर उसके बाद पढ़वाएं। आप नाजरा पढ़ाते हुए इस तरह भी कर सकते हैं, कोई भी आयत अगर आप बुक से देखें, जैसे ये सुभानकल्लाह, आप वाइट बोर्ड पर लिख लें, वाइट बोर्ड पर लिख लें, फिर बच्चों से पढ़ाएं, एक एक बच्चे को पढ़वा लें, ठीक है। आप पढ़ें पहला लफ्ज़, ठीक है, फिर एक बच्चे ने पढ़ा सुभान, ठीक है, आगे अल्लाह पढ़ा, अगला बच्चा दोनों लफ्ज़ को मिला के पढ़े तो सब बच्चे भी पढ़ाएं, ठीक है। फिर इसी तरह अगला लफ्ज़ है, सब बच्चों को मिला के पढ़ाएं डिफरेंट तरीक़ों से, ताकि बच्चों के ये एक आयत भी रोज़ाना पढ़ते जाएं और उनकी प्रैक्टिस भी होती जाए, ठीक है। बाकी आप जिस तरीके से कराएं वो आपकी डिफरेंट मेथड है, समझ आ गई। आपने क्लास में रोज़ाना की बुनियाद पर क्या करना है? 3 चीज़ों को। सबसे पहले क्लास में इंटर हुए, जो कल सबक पढ़ाया ना उसका याद करवाना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आज हमने हरूफ मद्दा पढ़ना है और कल हमने पढ़ा था हरूफ कलकला। आप में से किस किस को याद है कल हमने हरूफ कलकला के मुताबिक क्या क्या पढ़ा था? बच्चे से पूछें, ठीक है। नहीं आता आप बताएं बच्चों को, बच्चे भूल जाएंगे, कुछ बच्चों को याद होगा। हरूफ कलकला से मुराद 5 हरूफ हैं, इन पर कलकला ऐसे किया जाता है। जब वो बता देंगे उनको आप दोबारा से रिपीट कर दें, ठीक है। वाइट बोर्ड पर करवा दें थोड़ा सा, या वाइट बोर्ड पर ना भी कराएं, ज़बानी करवाने के बाद आप फिर अगले सबक की तरफ, यानी सबसे पहले क्लास में इंटर होने के बाद क्या चीज़ है? इयादा।
कल के सबक का रिवीजन, इयादा रिवीजन। वो आपने करवाना है। इयादा करवाने के बाद अपने सबक की जाने पड़े, अपना सबक, ये कोई भी सब्जेक्ट है, उर्दू पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, आप कल के सबक के मुतालिक ज़रूर पूछें। आपको साल के एंड में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, रिवीजन में अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी ना, रिपीट होती रहेंगी। आपने कल पढ़ाया, भूल भुला गया, आज भी ना उसको किया, आप हफ्ते बाद भी कुछ ना कुछ। यहाँ कुरान पाक में तो ये है, आप ये पढ़ रहे हैं ना, आप वक्त की कमाल पढ़ रहे हैं। यहाँ आप कलकला जो तीसरा चैप्टर है, आप उसकी रिवीजन करवा सकते हैं बच्चों को। यानी चीज़ें चलती रहेंगी, कोई भी लफ्ज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले रिवीजन करवाएं साबका सबक की, फिर उसके बाद अगला सबक पढ़ाएं। अगला सबक पढ़ाने के बाद दोबारा आखिर में क्या करें, जो आज का सबक पढ़ा है उसको डिस्कशन के ज़रिए से, यानी बच्चों के सवालात के ज़रिए से उसको क्लोज करें। आप उनसे सवाल करें, वो आपसे ठीक, इस तरीके से क्लास का काम करें। इस तरीके से आप महसूस करेंगे बच्चा आपके साथ बड़ा खुश रहेगा, वो सारे टीचर्स से ज़्यादा आप फेवरेट बन जाएंगे। यूँ आप एक तो एक्टिविटी बेस पे जाएंगे,